we are going to get discuss about the cohesive and adhesive forces, and in which condition the liquid get wet to another, and in which condition this liquid cannot be get wet. So first of all, let me discuss here. Whenever this adhesive force between the different molecule become greater than the cohesive force between the same molecule, in that condition, okay, liquid get come in contact or get wet to other. जैसे यहाँ पर देखिएगा, वाटर और ग्लास को लेकर के चलते हैं, तो वाटर जो है ग्लास के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, चिपक जाता है, गेट वेट्स, भिगो देता है, बट मरकरी नहीं। तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि एडहेसिव फोर्स बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल greater than the cohesive force between the same molecules. At this situation, always, forever, the liquid get wet to the other. यानी जैसे यहाँ पर adhesive force है, okay, वो cohesive force से greater है. Due to this, water molecules get wet to the glass, okay, यानी उस ग्लास के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, चिपक जाएंगे या उसको भिगो देंगे, बट मरकरी नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ इस केसेस में मरकरी और वाटर के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उससे कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ड्यू टू दिस मरकरी डजंट गेट वेट टू द वाटर, ओके, यानी इस वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, वो अलग ही रहता है। So in this condition, for first condition, whenever adhesive force between different molecule is become greater than the cohesive force between the same molecule, in this situation the liquid get wet to the another surface, just like glass, okay, and if the adhesive force become less than the cohesive force between the same molecules, so due to this condition the mercury or water doesn't get wet to the mercury, यानी उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो अलग ही रहेगा। सो इसी तरीके से वाटर और ऑयल के लिए भी है, फॉर सेम कंडीशन। तो देखिएगा वो चिपकेगा कब, जब कांटेक्ट में कब आएगा, यानी भिगोएगा कब, जब ऐसी कंडीशन हो Fa ग्रेटर Fc, एडहेसिव ग्रेटर देन कोहेसिव, और कब नहीं भिगो पाएगा, कब नहीं मिक्स हो पाएगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब एडहेसिव लेस देन कोहेसिव हो जाए, ओके। सो नाउ लेट मी डिस्कस व्हाट इज सरफेस एनर्जी। So what is surface energy? So this is the work done which required to be increase the surface area, okay, surface energy। surface energy क्या है, एक तरीके से वर्क डन है, it is work done which has been done to increase the surface area of any liquid surface, okay, यानी उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वो होता है सरफेस एनर्जी। सो लेट मी डिस्कस हियर, दिस इज यूज्ड ए वायर A B C D which bends into this shape A B C D and placed in a liquid, okay, and just like attach a thicky wire just like a movable piston shape. So this is PQ wire, here a liquid surface, liquid layer, okay, so this is the film of liquid, टू सरफेसेस, लिक्विड की फिल्म में टू सरफेसेस होते हैं, और जैसे यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। लेट मी कंसीडर हियर दिस कंडीशन इज P dash Q dash and displacement from delta x. So due to this displacement
here form some work done. That work done is equals to surface energy, and work done, you know that force into displacement, and the force here, this force is equals to the F dash, just like this, and F dash T equals to F dash by L. So F dash equals to T into L, but this is a liquid film where two surface, so due to this F dash will be 2T into L. So this is equals to F dash 2T into L into delta x. So T into 2L into delta x, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा. सो ये कंप्लीट जो इतना पार्ट है चेंज इन एरिया होगा, W इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा ए, वेयर डेल्टा ए इक्वल्स टू 2L इंटू डेल्टा एक्स, मीन्स चेंज इन एरिया, एरिया में चेंजमेंट है. So let me consider here A, B, C, D are wire which bends into the shape of A, B, C and D are just like U shape, and here also attached a thicky wire just like a PQ which can move, and placed it into the liquid surface, and whenever we applied some force F dash, so here this is the liquid surface. So liquid surface contain the liquid film contains two surfaces due to the force F dash equals to 2TL. वैसे तो यहाँ TL था बट डबल सर्फेसेस है इसलिए 2TL, तो एरिया भी डबल जो होगा वही मेजर करेंगे. तो जब हम इसमें कुछ फोर्स अप्लाई करा F डैश, देन इट डिस्प्लेस्ड PQ to P dash Q dash delta x. So due to this displacement work will happen, and that will store in the form of surface energy, that is equals to F dash into delta x, and this is equals to 2T into L into delta x. So 2 into L into delta x is equals to area or change in area. So surface energy is equals to W equals to T into delta x. So let me discuss here this area for the liquid drop. It will be a spherical, that area is in the form of 4 pi square, and for soap bubble there will be two surfaces. Due to this its area will be 2 into 4 pi r square. जब हम सोप बबल यूज करें तो एरिया डबल यूज करेंगे, और जब कोई लिक्विड ड्रॉप यूज करेंगे तो सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर फेज. तो स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल फॉर्म का जो एरिया होता है वो वही 4 पाई आर स्क्वायर होगा, बट सोप बबल के लिए डबल सरफेसेस हो जाएंगे. इट कंटेन्स डबल सरफेसेस, ड्यू टू दिस इट्स एरिया विल आल्सो बी डबल. तो ये ध्यान रखिएगा. अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम एप्लीकेशन related to the surface tension application. Let me discuss. This is a big drop whose radius is capital R, spread into n small drops. जब इसको हमने small liquid drops, okay, तो जब हम इसको, ये n ड्रॉप्स हैं और सभी ड्रॉप्स की जो रेडियस है सेम है, ये n है, कितनी है n है, और सब की रेडियस स्मॉल r है. तो अब जो होगा एरिया इसका इंक्रीज कर जाएगा, और हमने यही डिस्कस किया कि एरिया इंक्रीज करने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वर्क डन होता है, दैट इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिएगा कि इस r और स्मॉल r में रिलेशन क्या होगा. तो जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम एन ड्रॉप्स का होगा. सो वॉल्यूम ऑफ दिस 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम है और इतनी ही हर एक है. कितने ड्रॉप्स हैं, n ड्रॉप्स हैं, तो n से मल्टीप्लाई कर दिए. तो जितना भी वॉल्यूम हुआ, अगर ये 1 लीटर वाटर था तो 1 लीटर वाटर ही स्प्रे किया गया है, मीन्स वॉल्यूम सेम रहेगा, बट यहाँ पर ये ऐसे था और यहाँ स्प्रे कर दिया गया तो एरिया ग्रेटर हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू
आर क्यूब इक्वल टू n पावर 1/3 स्मॉल आर होल क्यूब। अगर हम इसको होल क्यूब में लिखें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में ये रिलेशन आ जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इससे स्मॉल आर की वैल्यू अगर देखें तो कैपिटल आर पावर n पावर 1/3 ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो एरिया पहले इसका ड्रॉप तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और A2 हो जाएगा n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर मीन्स r बाई n पावर 1/3 होल स्क्वायर। So it is equals to n into 4 pi capital R square upon n power 2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 pi R square into n पावर 1 और नीचे 2/3 1 minus 2/3। So it is equals to the 4 pi R square n power 1/3। ये A2 आ जाएगा and you know that this is the spread area, due to this A2 is greater than A1। A2 A1 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो अब हम डेल्टा A निकाल लेंगे। सो डेल्टा A विल बी इक्वल टू द A2 माइनस A1। सो इट इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर n पावर 1/3 माइनस 4 पाई R स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर n power 1/3 minus 1। this is delta A। thus surface energy is equal to T into delta A। so T into 4 pi R square n power 1/3 minus 1। this will be surface energy for liquid drop। okay? और अगर यहीं पर ये लिक्विड ड्रॉप ना होता, सोप बबल होता, तो सोप बबल के लिए यहां से ध्यान रखिएगा, यहां आप कर सकते हैं फॉर सोप बबल एरिया जो होता 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इस फॉर्म में आता। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर जो 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है इसी की जगह 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आता, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व कर लेते। तो इस तरीके से किसी भी बिगर ड्रॉप को nth स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। लेट अ बिग ड्रॉप लिक्विड ड्रॉप of radius 20 centimeter spread into 27,000 small drops। find surface energy and given its surface tension is 1.2 into 10 power minus 3 Newton per meter। so how we will solve? First of all, this bigger drop whose radius is 20 centimeter, it is spread into the 27,000 small drops and each radius is smaller, so we can say that 4/3 pi r cube is equals to 27,000 small drops volume। okay? So it will be equals to 20 into 10 power minus 3 whole cube equals to 30 का whole cube ये आ जाएगा small r whole cube। so 20 into 10 power minus 3 equals to 30 r। so r is equals to 20/30 into 10 power minus 3। okay? so it will be small r, capital R is equals to 20 into 10 power minus 3 minus 2 meter and small r is equals to 2/3 into ये इसको आप ऐसा कर दीजिए mm में, मान लीजिए हमने mm लेकर के चल दिए हैं 10 पावर minus 3, तो इट इज इक्वल टू मीटर। ओके? सो दिस रिलेशन स्मॉल r ये आ गया। अब हम इससे एरिया सॉल्व कर सकते हैं। A1 हो जाएगा
4 pi r स्क्वायर 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 होल स्क्वायर एंड A2 हो जाएगा 27,000 इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर 20/30 इंटू 10 पावर माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, सो अब A2 सॉल्व करना है। 27,000 ये लिखा है, 4 पाई इंटू 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 होल स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900। ये हमने इसलिए जी कर दिया क्योंकि फर्स्ट में भी ऐसे आना रहेगा और इससे आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा A2 इक्वल टू 30 इंटू 4 पाई 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 होल स्क्वायर। सो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, अब आप डेल्टा ए सॉल्व कर सकते हैं। A2 माइनस A1, सो 4 पाई इंटू 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 होल स्क्वायर कॉमन 30 माइनस 1, सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 410 पावर माइनस 6 इंटू 29 एंड टी की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 3। सो यूजिंग द फॉर्मूला W इक्वल टू सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। सो T 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 4 पाई इंटू 400 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 29, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने जूल एनर्जी आ जाएगी, दैट इज नोन एज सरफेस एनर्जी।